Munir, Governor of Balochistan, Chief Minister of Balochistan, Federal Ministers, General Officers, السلام علیکم. آج ہم یہاں پہ بلوچستان میں جمع ہیں. پچھلے 4 دنوں میں السلام علیکم. آج ہم یہاں پہ بلوچستان میں جمع ہیں. پچھلے 4 دنوں میں بعض بڑے سنگین واقعات ہوئے جس کے نتیجے میں پولیس کے جوان، فوجی بھائی اور شہری شہید ہو گئے. 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا اور یہ جنگ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں آخری فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. اس حوالے سے افواج پاکستان کے کڑیل جوانوں، افسروں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا لا انفورسنگ ایجنسیز نے اور عام نہتے شہریوں نے. الحمدللہ پوری قوم کا یہ فیصلہ ہے اور پوری قوم اس وقت افواج پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہیں اور دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں کہ یہ قربانیاں جلد سے جلد اپنا رنگ لائیں گی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے. ہر لحاظ سے بھرپور وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں، اسلحہ مہیا کر رہے ہیں. افغانستان میں یہ دہشت گرد مل کر حملہ آور ہوتے ہیں کے پی میں، اور اسی طریقے سے اور کچھ خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں پر مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایک یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. اور یہ ہمارے جو مخالفین جو ہیں، یہ دہشت گرد، یہ فتنہ الخوارج، ان کا جو مذموم عزائم وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی عزت عطا فرمائی ہے عالمی افق کے اوپر، چاہے وہ ہماری سفارتی کامیابیاں ہیں، چاہے وہ پچھلے سال مئی کی جنگ ہے 4 روزہ مارک حق، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عظیم اپنی کمال مہربانی سے جو عزت دی ہے، وہ نہ صرف دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں. تو آج ہم یہاں پر سب جمع ہیں اور یہاں پر ہم نے ابھی اپنی جو گفتگو بھی کرنی ہے، لیکن یہ فیصلہ میں قوم کو سنانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، فیلڈ مارشل شہید آصف منیر کی طرف سے اور بلوچستان کی حکومت کی طرف سے، کہ ہم مل کر دن رات اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور تمام وسائل برے کار لا کر انشاءاللہ اس کا خاتمہ کریں گے اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گی. میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ شہداء جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کی، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب دست بدعا ہیں کہ ان کو
जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी कुर्बानी जो है इंशाअल्लाह वो जल्द ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोई गुज़िश्ता चंद दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इज़हार ख़याल कर रहे थे आखिरी फसादी के ख़ात्मे तक इस जंग को जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज के अफसरान और जवानों ने लाजवाल क़ुरबानियाँ दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बहादुर फ़ौज ने अपने खून का नजराना पेश किया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात रूनुमा हुए हैं। पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना है। हमारा मशरक़ी हमसाया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। वज़ीर आज़म इज़हार ख़याल कर रहे थे दहशतगर्द तंजीमों को असलहा भी फ़राहम किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। और अपने ख़िताब में उन्होंने ये वाज़ेह किया कि संगीन वाक़यात के पीछे हमारा पड़ोसी मुल्क है और इन वाक़यात के नतीजे में पुलिस और पाक फ़ौज के जवान और शहरी शहीद हुए। मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम भी वासिल किया गया है। दहशतगर्द तंजीमों को असलहा फ़राहम किया जा रहा है, इसका भी उन्होंने ज़िक्र किया। और मुसल्लह फ़ौज के अफसरान और जवानों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म ये कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर फ़ौज ने अपने खून का नजराना पेश किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़िताब कर रहे थे हमारा मशरक़ी हमसाया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। दहशतगर्द अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी उन्होंने कहा। और ये भी वाज़ेह किया कि दहशतगर्द अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके ख़ात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। सियासी अस्करी क़यादत के हवाले से उन्होंने इज़हार ख़याल किया और कहा कि सियासी अस्करी क़यादत का ये अज़म है कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है। हमने फ़ितनल ख़ारिज के मज़मूम आज़ाइम को भी नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान की सफ़ारती कामयाबियाँ दुश्मन को हज़म नहीं हो रहीं। और वज़ीर आज़म ने कहा गुज़िश्ता साल मई में मौक़िआ की कामयाबी भी दुश्मन को हज़म नहीं हो रही। दहशतगर्दी के फ़ितने के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा और पाकिस्तान जल्द तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा गुज़िश्ता चंद दिनों में दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात सामने आए हैं। इन वाक़यात के नतीजे में पुलिस, पाक फ़ौज के जवान और शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुसल्लह फ़ौज के अफसरान और जवानों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी बहादुर फ़ौज ने अपने खून का नजराना पेश किया है। और उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारा मशरक़ी हमसाया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। और एपेक्स कमेटी के इजलास से ख़िताब करते उन्होंने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों को असलहा फ़राहम किया जा रहा है। दहशतगर्द अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया सियासी और अस्करी क़यादत का ये अज़म है कि हमने मिलकर दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है। हमने फ़ितनल ख़ारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की सफ़ारती कामयाबियाँ दुश्मन को हज़म नहीं हो रहीं। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में ये गुफ्तगू की है। और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के फ़ितने के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। पाकिस्तान जल्द तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनेगा। दहशतगर्द अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करते हैं। सियासी अस्करी क़यादत का यह आज़म है कि हमने मिलकर दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है। हमने फ़ितनल ख़ारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह अहम ख़िताब जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता चंद दिनों में दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और पुलिस, पाक फ़ौज के जवान और शहरी इसमें शहीद हुए हैं। जबकि 54 दहशतगर्दों को मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। आखिरी फसादी के ख़ात्मे तक इस जंग को जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह फ़ौज के अफसरान और जवानों ने लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की हैं और हमारी बहादुर फ़ौज ने अपने खून का नजराना पेश किया है। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से ख़िताब जिसमें उन्होंने बताया कि 54 दहशतगर्दों को अब तक जहन्नुम वासिल किया जा चुका है और मुसल्लह फ़ौज ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। आखिरी फसादी के ख़ात्मे तक इस जंग को जारी रखा जाएगा। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में इज़हार ख़याल मुसल्लह फ़ौज के अफसरान और जवानों की जानिब से कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा रहा है।